morning, all, and I welcome you again for this session of 8085 instruction set, and which we will just repeat what we have done in the last class, and then we'll start with the new things, that how to write a program and how to do that. So actually, we were working on the 8085 instruction set, and in which we have completed some of the instructions which were related to, say, data transfer group, and we will again recall these back, and then we will start with how to write a program, right? So we have studied about what are the instruction sets of 8085. An instruction set is a binary pattern designed inside a microprocessor to perform a specific function, right? This is what we have studied, and the entire set of instructions where we are हेलो having सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, पर सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, दूसरा तो नहीं तुम्हारे नहीं सर, पास। मतलब आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है। ओके, माइक में कुछ प्रॉब्लम है, अभी आ रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो निखिल, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर, पर बहुत धीरे आ रहा है आवाज। वेट, मुझे इसको निकालना पड़ेगा। अभी आ रहा है आवाज? हेलो, यस सर, एम आई यस सर। ऑडिबल? स्टिल इट इज लो? हेलो यस निखिल, सर, आ एम रहा आई है, बट ऑडिबल नाउ? अभी तो वही प्रॉब्लम धीरे धीरे शायद स्पीकर हमारा। हाँ निखिल, एम आई ऑडिबल? हेलो, यस सर, यस सर, okay, यस सर। right. So I'm keeping this headphone down. If you need to say something, put it on chat box, right? So we'll just complete what we have learned in the last class, and then we'll start, right? Okay. So I'm starting with that. So we have completed the instruction set of 8085, in which we have studied that what is an instruction. Instruction actually is a binary pattern designed inside the microprocessor to perform a specific function, right? The entire group of instructions that a microprocessor supports is called instruction set. यानी एक पूरा set of instruction एक particular function perform करने के लिए जो use करते हैं, that is called as a program. तो हम लोग ऐसे प्रोग्राम अभी लिखने वाले। So 8085 has 246 instructions, right? 246 instructions है, but हम लोगों ने उसको अलग अलग डिवाइड किया है, तो वो बहुत सारे हो जाते हैं, but total it is around say 74 to 75, which are very easy to remember, right? Then we have studied that each instruction is represented by an 8-bit binary value, right? तो हम लोगों ने 8-bit binary value हम लोग उसको रखने वाले हैं, और उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं कि ये जो है नो ऑडिबल। ओके ओके ओके, सॉरी। तो अभी कैसा कर रही है, मेरे ख्याल से मैंने माइक दिया है। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो, एम आई ऑडिबल? Am I audible now? Hello? यस सर, यस सर। Okay, right. Now it's okay. So I will not use that headphones. So yes, what we were talking about, instruction set of 8085, and instruction set ये बताया मैंने आप लोगों को, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और हर एक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 8-bit बाइनरी कोड, या हम लोग अभी उसको हेक्साडेसिमल में रखेंगे तो 2-bit हमारा हेक्साडेसिमल कोड बनने वाला है, दैट वी कॉल इट एज अ ऑप कोड, राइट? सो एक जो होता है दैट इज अ ऑप कोड, एंड द रेस्ट वन आर द डेटा. So this was what we have studied over there. Then इसके बाद classifications of instruction set, we have done that, and we have classified these instructions into 5 categories: data transfer instruction, arithmetic instructions, logical instructions, branching instructions, control instructions, right? ये हम लोगों ने उसको categorize किया, और one by one हम लोग इसको check कर रहे हैं. तो we have started with the data transfer instruction. So these instructions move the data between the registers, or between memory, or between the registers and memory, and vice versa. तो ये जो काम होता है मूवमेंट का डेटा का, that comes under this data transfer instruction. Now these instructions copy data from source to destination. ये अभी हम लोग while writing it in the format, we will write it as a source source field, and then we will have a destination field, right? So we are using that.
while copying the contents of source are not modified. यानी जब हम लोग कंटेंट्स कॉपी करते हैं तो सोर्स का जो डेटा रहता है वो जैसा का वैसा ही रहता है. इट इज जस्ट merely the copying of data from the source to the destination, and we are not altering that data. So that is written over there. Then the data transfer instruction, जो हमारे instructions थे वो that we have started. So the first instruction is move RD to RS. Now what this means is RD stands for the register's destination, RS stands for the source registers, right? So we call it as move from the source register to the destination register. So we, while we're reading, we read like move RS to RD. Similarly, if you want to move the data from a register to memory, then we'll write move RS to M. RS means that might be register A, B, C, D, H, L. तो जितने भी रजिस्टर है A, B, C, D, A, B, C, D, E, H और L, ये जितने भी रजिस्टर है, they all come under that R category. और दूसरा तीसरा जो instruction, that is move the content of memory to the register that we are going to study now. So these instruction copies the contents of the source register into the destination register or in the memory, right? And during that, the data which is to be copied or which is to be stored is not interchanged, yeah, not altered, right? So नीचे instructions लिखे हुए हैं, नीचे दिया example एक move C to B है, यहाँ लिखा हुआ ऐसा है move B to C, B C ऐसा लिखा है, but while reading what we write is move C to B, यानी move the content of register C to B ऐसा लिखते हैं. तो ये याद रखना हम लोग क्या लिख रहे हैं. और दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है move M to B है, यानी move the data from memory location whose address is specified in the किसमें specified किया है हमने, in the HL पेयर, तो वहां हमारे को मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो ये उसका है. देन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इमीडिएट सोर्स ऑफ डेटा ट्रांसफर, मतलब अब डेटा इज टू बी स्टोर्ड इमीडिएटली. तो वी हैव टू मेंशन द डेटा इटसेल्फ इन द ऑपकोड. तो ऑपकोड के बाद हम लोग डेटा डालेंगे, जैसे हम लोगों ने MBI A03 डाला था. सो 03 इज द डेटा और 3 इज द ऑपकोड. सो वी हैव राइट, वी कॉल दिस एज मूव इमीडिएट 8 bit ऑफ डेटा, राइट? So we can move that data in the memory, we can move that data immediately in the registers also, that we have already used. Example नीचे दिए हुए हैं MBI B57H M और MBI M57H, ये हम लोग देख चुके हैं. Then LDA load accumulator directly from the memory location, यानी क्या करना है, the contents of memory location specified by the 16-bit address. ये जो यहाँ ऑपरेंड में या हम लोगों ने जो प्रोग्राम में 16-bit का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया है, वहां से कहाँ डेटा कॉपी करना है, एक्यूमुलेटर में, राइट? तो यहाँ पे LD है, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, मतलब लोड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड ओवर हियर, 16-bit एड्रेस is to be stored in the accumulator. So this we call it as LDA. और इसका एग्जांपल यहाँ दिया है LDA 2034. इसका मतलब होता है कि the data which is stored in the memory location 2034 is to be loaded, is to be stored in the accumulator, is to be copied in the accumulator, right? So that is the LDA instruction. Then we have the next instruction as LDAX. Now whenever there is X, I have told you that it is mentioned for the pairs. So we have two pairs, BC and DE. HL is also there. So LDAX B and LDAX D. So D stands for DE pair, B stands for BC pair, right? So load accumulator indirect. Now the data is to be moved indirectly. अब कैसा करेंगे हम लोग data move? The contents of designated register pair point to a memory location. मतलब क्या करने वाला है ये instruction? This instruction copies the contents of that memory location into the accumulator. अब ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहां पर है, BC में या DE, ये वाले रजिस्टर पेयर्स में है, राइट? तो इसका डेटा कहां कॉपी करना है हमारे को, एक्यूमुलेटर में करना है. तो पहला वाला जो इंस्ट्रक्शन था वो था LDA, है ना, LDA था, मतलब लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली. और अभी जो है हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्टली, मतलब LDAX. रजिस्टर पेयर में जो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम लोगों ने स्टोर किया है, कौन से मेमोरी, कौन से रजिस्टर पेयर्स है, BC और DE. ये रजिस्टर पेयर में हम लोगों ने
कुछ तो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया है, वहां का उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पर जो डेटा है, दैट डेटा इज टू बी लोडेड इन द एक्यूमुलेटर। सो ये इसका एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है LDX B, ऐसा ही LDX D भी है, राइट। तो ये BC और DE पेयर के लिए बोला गया है, यानी BC और DE पेयर में क्या रहेगा, द 16 बिट एड्रेस, राइट। फिर हम लोगों ने LXI H, ये वाला इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं। नाउ अगेन X स्टैंड्स फॉर रजिस्टर पेयर, सो वी आर हैविंग 3 पेयर्स, BC, DE and HL. So we are having 3 pairs, BC, DE and HL, 3 pairs. तो LXI H, LXI B, LXI D, ऐसे हमारे 3 इंस्ट्रक्शन बनते हैं, which implies that we have to load the register pair by the data which is specified over here. तो हम लोगों को प्रोग्राम में ही वो डेटा देना है। हम लोगों ने ये यूज किया है, LXI H ये इंस्ट्रक्शन यूज किया है, जिसमें हम लोगों ने मेमोरी लोकेशन का एड्रेस डाला था, इफ यू रिमेंबर 6050, राइट। देन दैट टाइम वी हैव यूज्ड दिस डेटा LXI H 6050, और लिखते वक्त हम लोगों ने ऐसा लिखा था, opcode was 21, no doubt, which we are going to use it many times. So 21 is the opcode, 50 lower order, and 60 is the higher order memory location address, right? So while writing we write 21 50 60, right? And while here LXI H 6050, यहाँ पर अभी लिखा हुआ है LXI H 2034, तो हम लोग लिखते हैं कैसे लिखेंगे, 213420, right? ये लिखने का पैटर्न, that we will see while writing a program. Then we have LHLD, so load HL registers directly. Now this instruction copies the contents of memory location pointed out by this 16-bit address into register L, and the next is copied in the register H. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी ये 16 बिट का एड्रेस हम लोग यहाँ स्पेसिफाई करने वाले हैं, उस मेमोरी लोकेशन का, उस एड्रेस का जो डेटा है, दैट इज टू बी स्टोर्ड इन फर्स्ट L, और उसके बाद के नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का डेटा जो है, दैट इज टू बी स्टोर्ड इन H। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है LHLD 2040, which implies that at the memory location address 2040, जो कुछ भी डेटा होगा, that data is to be stored in register L। एक हो गया। उसके बाद के नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सा आने वाला है, 2041। पहला वाला कौन सा है, 2040, राइट, और दूसरा वाला कौन सा है, 2041। सो 2040 का डेटा कहाँ स्टोर किया, L में, और 2041 का डेटा कहाँ स्टोर करेंगे हम लोग, H में। सो दिस इंस्ट्रक्शन लोड्स द डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो दो डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज ओवर देयर। देन we have the next instruction as stacks. Now store accumulator, मतलब अब accumulator का डेटा LDA का उल्टा करना है, store accumulator कहां पर स्टोर करना है, जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हम लोग दे रहे हैं, उस मेमोरी लोकेशन पर डेटा हमारा जो भी एक्यूमुलेटर में है, दैट इज टू बी कॉपीड ओवर देयर। तो ये हमारे को वहां पे बताना है, राइट। तो STA आ जाएगा वहां पर, STA उसका उल्टा। तो STA 2500H का मतलब होता है the data or the content of the accumulator is to be copied in the memory location 2500, right? H stands for hexadecimal. So this was there. Then STX, again LDX का उल्टा STX, store the accumulator, यानी store the contents of the accumulator in the memory location whose address is specified in the रजिस्टर पेयर BC और DE। ये रजिस्टर पेयर में जो भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, उस जगह जाकर हमको डेटा स्टोर करना है, दैट इज कॉल्ड किसका डेटा, एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है। तो स्टैक्स हम लोगों ने LDX पढ़ा था, उसका उल्टा, राइट। अभी सब उसके अपोज वाले SHLD। अब LHLD में क्या हुआ था, कि L में और H में वो मेमोरी लोकेशन का डेटा स्टोर किया था। अब SHLD में क्या होगा, L और H का डेटा वो मेमोरी लोकेशन पर और उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर डेटा स्टोर करने का काम करता है। तो द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर L आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द 16 बिट एड्रेस। ये जो एड्रेस देने वाले हम लोग, उसमें जाकर L का डेटा स्टोर करो, उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में कौन सा डेटा स्टोर करना है, H का डेटा स्टोर करना, राइट। तो जैसे यहाँ SHLD लिखा है 2550, तो L में जो भी डेटा होगा, that is to be stored in the memory location 2550, और H का जो डेटा होगा वो उसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में 2550
1 ये मेमोरी लोकेशन में h का डेटा स्टोर करो, ये होता है इसका, right? Then we have exchange. Yes, this is a very nice instruction which we are going to use in the data transfer program itself. Exchange में क्या होता है, HL और DE का डेटा जो होता है they are being interchanged. मतलब मान लो HL में हम लोगों ने एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया, DE में हम लोगों ने एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया, ये दोनों को इंटरचेंज अगर करना है, अगर मुझे मेमोरी के लिए यूज करना है DE का डेटा, DE में जो डेटा रखा है वो, तो मुझे क्या में लाना पड़ेगा, HL में लाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम हमको अभी लिखना है। एक 256 का डेटा, 256 मेमोरी लोकेशन का डेटा अगर मुझे कॉपी करना है या एक्सचेंज करना है, तो हमको ये वाले इसका इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, याद रखिए। तो उस वक्त हम लोग यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, HL में जो डेटा है वो DE में चले जाएगा और DE का जो डेटा है वो HL में आ जाएगा, ये काम होता है। तो दैट इज द इंस्ट्रक्शन, दैट इज एक्सचेंज। फिर उसके बाद है SPHL. Now this is for the stack pointer. ये हम लोग बहुत रेयरली यूज करने वाले। So this instruction loads the contents of HL pair into SP stack pointer में, right? तो ये इंस्ट्रक्शन से हम लोग HL पेयर यानी HL जो मेमोरी के लिए यूज करने वाले हैं रजिस्टर पेयर, उसका डेटा कहाँ स्टोर करने वाले हम लोग, स्टैक पॉइंटर वाले रजिस्टर में, राइट? तो ये हम लोगों ने देखा था। फिर ये XTHL है, these are not concerned with us, हम लोग कभी यूज नहीं करने वाले, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। The contents of register L are exchanged with the location pointed out by the contents of stack pointer. तो अब उसका जो डेटा है वो एक्सचेंज हो जाता है, मतलब HL L का उधर और H का उधर, और वैसे ही जो डेटा SP में था वो L में आ जाएगा और उसके नेक्स्ट इसका डेटा H में आ जाएगा। तो ऐसा एक्सचेंज हो जाता है। तो दैट इज दिस XTHL which we rarely use. Then we have PCHL, मतलब प्रोग्राम काउंटर जो है, द कंटेंट्स ऑफ HL आर कॉपीड इनटू द प्रोग्राम काउंटर वाला रजिस्टर जो है उसमें, ये भी हमारे काम में नहीं आएगा। ये पुश वाला रजिस्टर है, पुश कब करते हैं हम लोग, स्टैक पॉइंटर में डेटा हम लोग पुश करते हैं, राइट? पुश करना मतलब डेटा को स्टोर करने का कुछ देर के लिए, टेम्परेरी, जिसके लिए कौन यूज होता है, स्टैक पॉइंटर यूज होता है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस देता है जहां पे हमको टेम्परेरी डेटा स्टोर करना है। ये पुश है और ऐसा ही हमारा पॉप रहेगा। पुश करना मतलब वो मेमोरी लोकेशन में डेटा डालना, पॉप करना मतलब डेटा वहां से लेना स्टैक पर से, राइट? मैंने आपको बताया था हम लोग रोटियां जब बनाते हैं तो एक के ऊपर एक रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैक। और अब रोटियां कैसे लेते हैं, जो लास्ट आई है वो पहले जाएगी और जो पहले आई है वो लास्ट में जाएगी, तो हम लोग इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला, राइट? सो दीज आर ऑल द डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। और ये एक आउट इंस्ट्रक्शन है जो हमारे पोर्ट से बाहर निकलने वाली है, राइट? 8 बिट पोर्ट का जो एड्रेस है वहां से हमारे को डेटा बाहर निकालना है, यानी LED ऑन करना है, तो हम लोग कौन सा डेटा देंगे। सो फॉर दैट वी रिक्वायर दिस out instruction, right? So we call this as out 78. These all comes under the data transfer group, and out के साथ जैसे out है वैसे ही in है। in मतलब अब डेटा अगर हमको in लेना है तो these are some data transfer instructions. इसके बाद then we will start with say the addition, say arithmetic instructions, right? तो अब ये हम लोग चालू करने के पहले we have to go through some of the program details. So let me stop sharing the screen and I will again share one of the screens which I hope will be, yes, required for to how to analyze a program. So this is that. Now writing and assembly language program, अब हम लोग जो कुछ भी लिखने वाले हैं that comes under the assembly language programming बोलते हैं। assembly language programming इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसको समझने वाले लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, एंड दैट वी आर गोइंग टू राइट इन हेक्साडेसिमल। वी आर गोइंग टू राइट इट इन हेक्साडेसिमल, राइट? हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा है, उसको काय में लिखा है, आउटपुट काय में लिखे है, हेक्साडेसिमल में लिखे। नाउ कैसे लिखते हैं प्रोग्राम के लिए, हम लोगों के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई नीड टू मेंशन। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम, राइट? तो अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम की लिस्ट भेजने वाला हूँ, वो प्रोग्राम के बारे में पढ़िए और उसके बाद हम लोग उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे चीजें सॉर्ट आउट करेंगे और प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ये हमको देखना है। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ प्रोग्राम? द फर्स्ट इज
एनालाइज द प्रोग्राम। एनालाइज द प्रोग्राम मतलब अब हमको प्रोग्राम में क्या करना है। इफ आई से I have to exchange the data of two arrays which are in the memory location and we have to exchange those data. ये दो exchange अगर हम लोगों को करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, right? So what we have to do is first we have to analyze the program. अब हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या करें। तो हम लोग मेमोरी लोकेशन कौन सी ले रहे हैं। मान के चलो मेमोरी लोकेशन लिया मैंने 6500, ये एक मेमोरी लोकेशन हो गया। 6550 ये दो मेमोरी लोकेशन हो गए। अब इन दोनों मेमोरी लोकेशन के बीच में हमको एक्सचेंज करना है। दिस इज व्हाट इज टू बी एनालाइज। सो द फर्स्ट थिंग इज टू एनालाइज अ प्रोग्राम। नाउ सेकंड वन इज डेवलप द प्रोग्राम लॉजिक। अब इसको हम लोग कैसा करेंगे ये हमको सोचना है, इसके पीछे का लॉजिक यूज करना है। तो एक्सचेंज करते वक्त हमको क्या करना है, हमको ये डेटा कुछ देर के लिए कहीं और स्टोर करना पड़ेगा, राइट? फिर हमारा ये दूसरे मेमोरी लोकेशन का डेटा ये मेमोरी एड्रेस में आ जाएगा, मतलब इधर का डेटा इधर कॉपी हो गया, ये अल्टर नहीं होगा। और फिर अब इधर का डेटा हमारा वापस इधर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिक, टू डेवलप अ लॉजिक ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रोग्राम, राइट? सो दिस वी विल डू। Then the third one is write an algorithm. Algorithm is the steps that we are going to perform, right? तो हम लोग halt वाला step last में लाएंगे, ये याद रखो। तो halt वाला step पहले नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। So this is what we have to write a steps. तो जब हम लोग एक घर बनाते तो क्या करते हैं, सबसे पहले पिलर्स बनाते, फिर उसका फाउंडेशन बनाते, then we start to increase those pillars and then we put a slab, then we make walls like that. तो इस प्रकार से जो हम लोग करते हैं, तो वी हैव टू राइट एन अल्गोरिथम, देन वी हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट आल्सो। फ्लो चार्ट आपको अभी बताते हैं क्या क्या होगा, राइट? देन राइट अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस यूजिंग असेंबली लैंग्वेज ऑफ 8085। तो अब हम लोग उसका प्रोग्राम लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग उसका प्रोग्राम, ये जो हम लोगों ने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाया है इसके हिसाब से विल स्टार्ट टू राइट विल ट्राई टू राइट द प्रोग्राम, और फिर उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है वो चेक करेंगे, राइट? अब जैसे यहाँ पर sorry, let us see that we have to write a program in assembly language to add two 8-bit numbers and store 8-bit result in register C. ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? ये हम लोगों ने कर चुके, राइट? ये प्रोग्राम को अब सबसे पहले क्या करना है, we have to analyze. What do I mean by analyze is given over there. Analyze the problem means we have to add two 8-bit numbers, है ना? तो 2 8-bit numbers इनका एडिशन करना है, ये अभी हमारा प्रॉब्लम है, राइट? और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसको सी में स्टोर करना है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट इज द लॉजिक? हमको ऐड 2 नंबर्स करना है और स्टोर रिजल्ट इन रजिस्टर सी। दिस इज अ लॉजिक। तो ऐड करने के लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, हमको दो डेटा लेना है, दोनों का एडिशन करना है और उसको कहाँ स्टोर करना है, हमारे को सी रजिस्टर में स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, ये 2 है, तो 99H, तो उसका बाइनरी कोड बनाया हुआ है 99H का, इसको हमको कहाँ स्टोर करना है, ए लिखा हुआ है पिंक कलर में, दैट इज इन रजिस्टर ए। फिर दूसरा डेटा जो लिया हुआ है हमने, दैट इज 39, दैट इज अगेन हेक्साडेसिमल। तो 39 का बाइनरी कोड ये नीचे बना हुआ है, 4 बिट्स में डिवाइड करके किया हुआ है उसको, बीसीडी कोड में बाइनरी कोडेड, सॉरी बाइनरी कोडेड डेसिमल नहीं है, ये एक्चुअली हेक्साडेसिमल में रखा हुआ है। सो उसका ये बाइनरी डिकोड बन जाए और उसके बाद उनका एडिशन किया है, और एडिशन का आउटपुट क्या है, D2H, एंड दैट इज टू बी स्टोर्ड इन रजिस्टर C. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, रजिस्टर A, रजिस्टर D एंड रजिस्टर C। ये 3 चीजें हम लोग यूज करने हैं। व्हाई वी आर यूजिंग रजिस्टर A? क्योंकि एडिशन का कोई भी प्रोग्राम हमको जब भी करना होता है, देन वी हैव टू टेक वन ऑफ द डेटा इन रजिस्टर ए। बाय डिफॉल्ट एक डेटा कहाँ होना चाहिए, हमारा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उसको ही लिया, राइट? तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। देन अल्गोरिथम। नाउ what we mean by an algorithm is translation of 8085 operations. Algorithm में what we are trying to do, we have to in the first step what we have to take, we have to take get 2 numbers। अब 2 नंबर लेने हैं। लोड फर्स्ट नंबर इन रजिस्टर डी, अब रजिस्टर डी में रख दिया, सोच रहे हैं लोड सेकंड नंबर इन रजिस्टर ई। चलिए रजिस्टर ई में हम लोगों ने ये सोच रहे हैं, हम लोग अल्गोरिदम बना रहे कि कैसे जाएगा।
तो डी और ई में हम लोगों ने ये दो डेटा स्टोर किया है, राइट। नाउ कॉपी रजिस्टर डी टू रजिस्टर ए। नाउ क्या किया है, रजिस्टर डी का डेटा कहाँ कॉपी किया है, ए में किया है, मतलब मूव कर दिया, मूव डी टू ए कर दिया, राइट। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप में ब्लू में जो दिख रहा है, ऐड रजिस्टर ई टू ए, यानी रजिस्टर ई का कंटेंट किसके साथ ऐड किया है, रजिस्टर डी के साथ, सॉरी रजिस्टर ए के साथ ऐड किया है। अब रिजल्ट कहाँ स्टोर होने वाला है, रिजल्ट स्टोर्ड इन द, आफ्टर दिस ऑपरेशन द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, राइट। फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट है, इसको कहाँ स्टोर करना है हमको, वी हैव टू कॉपी दैट इन रजिस्टर सी। सो कॉपी ए टू रजिस्टर सी कर दिया ये वाला, और उसके बाद लास्ट इज स्टॉप द प्रोसेसिंग। So this is the algorithm, this is a sort of algorithm that we are expecting to write while we need to do the program, right? So this is over there. Okay, there are more people waiting for me. Okay, so these are over there. This is the algorithm that we need to write, we are supposed to write, right? Then what is the flow chart? Now flow chart is actually the graphical representation of the steps that we are going to use. तो जैसे आपने वो ने algorithm लिखा है, वैसा ही आपको flow chart बनाना है। तो कैसे flow chart लिखते हैं, these are some of the symbols where we are using this, right? जैसे ये अभी सेमी सर्कल के साथ ये वाला एक स्टार्ट वाला सिंबल दिया है, वैसा ही सेम स्टॉप का दिया हुआ है। लोड करने के लिए ये थोड़ा सा लैंडिंग में ये वाला शेप लिया हुआ है, तो लोड रजिस्टर्स डी एंड ई, कॉपी डी टू ए, देन ऐड ए टू ई, एंड देन then add a to a and e and copy a to c and it store the result। तो ये हमारे को ऐसा लिखना है। देखिए एल्गोरिदम के साथ साथ हम लोगों ने ये फ्लो चार्ट भी बनाया। दिस इज जस्ट द एग्जांपल टू शो यू हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। देन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, नाउ वी हैव टू एक्चुअली राइट द प्रोग्राम, राइट। तो अब प्रोग्राम लिखते वक्त हमको क्या क्या नेमोनिक्स यूज करने हैं, that is what we have to mention over here। So the first step is get two numbers, load first number in register D, load second number in register D। What are the instruction, MVI D 2H, MVI E 3H। अब हम लोगों ने वहां पे क्या लिया था, 99 और 39 ये वाले नंबर्स लिए थे, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, 02 और 03 ये नंबर्स लिए हुए। Don't get confused, right? We should write here like MVI D 99H, MVI E 39H, right? तो यहाँ आना चाहिए था। इसके बाद add them मतलब copy registers D to A, copy registers D to A। एक second, if it is possible for me, hold it for us, let me check। Yes, if I could write here, yes, it could be written, so it is 99H and this was 39H, right? So this is to be written, yes. So this was the data that we were expecting to load, so MVI D99H and MVI E39H, right? Then add them। तो add करने के लिए what the basic criteria is, one of the data should be in the accumulator। So we are moving one of the data, that is we are moving the content of or moving the data of register D to the accumulator। So we are moving this। So यहाँ पर ये instruction लिया है move D to A। While writing we write like move AD, and while reading we read it like move D to A। Then we have added this add register E, तो add E कर दिया, add the content of register E to register A। Store the result करने के लिए क्या करना है, copy A to C। So move the data of register A to register C, and then we will stop the program, और stop करने के लिए we have that instruction halt। So these are the mnemonics that we are going to write, we are going to mention it in the program। I hope you have understood this assembly level language program। और यहाँ पर this is also the result of that। So we have added 99 and say 39। This is again say this should be 39, huh? Again it is given you 99 99, okay, 99 18 18 means 15 or 3 132H। So there is a carry, right? So if you see this, so ninth bit in the result is called as carry bit। So ये 1 जो आया हुआ है ये कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा। तो हम लोगों ने उसको वहां पे ये एनालाइज किया हुआ है। दिस इज अनदर प्रोग्राम
which we will consider in the next class. I hope you have understood this, and this is how you need to write a program. आप इसको लिख लीजिए, और मैंने जो प्रोग्राम का शेड्यूल लिख कर दिया था, पैटर्न लिख कर दिया था, उसमें आप इसको डालिए, and you might be able to write that, right? So check this. So this is all about the how to write a program. We will be writing these programs. I will be sending you the list on Google Form, Google Classroom, and we'll be doing all those programs one by one, right? So I'm stopping my share, and if you have any questions to ask, you can ask me here, or you can even put it on chat box. Or I hope you have understood all those things. How to write these sorts of programs where we need to copy a data from one point to the other, or from one memory location, or from say one pen drive to a memory location to the desktop or somewhere else. So how we are going to write? So for writing this, we have already written programs inside the microprocessor. We are just using those programs by just clicking on copy and paste, right? I hope you have got this. And if you have any queries, kindly let me know. Might be on the chat box, or might be you put it on WhatsApp group also, so that we can rectify in the next class. Am I clear? Okay. So I will just end this class. Thank you. Thank you very much for joining this class, and I hope we will be starting programs, hopefully some of the basic programs on 8085 in from the next class. And I expect 100% attendance of you people, to because we will be starting those programs, and you will be understanding those instructions which I need to tell you, or which I need to teach you, unless while using those instructions over there. So sometimes we will try that also. So thank you very much for listening, and I hope you have got this. And by that time, stay home, stay safe, and stay healthy. Take care. See you soon.